So the topic for this session is form follows function and function follows form. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. जब मैं आर्किटेक्चर में मैंने एंट्रेंस लिया इन द फर्स्ट ईयर, तो मेरे हमारी जो डिजाइन टीचर थी उन्होंने हमको डे 1 से बोला फॉर्म फॉलोज फंक्शन. 4 साल तक हमने वही प्रैक्टिस किया. When we entered into 9th semester, that is final year, अब मैडम सेट कि अब हम इस सेमेस्टर काम करेंगे फंक्शन फॉलोज फॉर्म पे. और पूरा जो हमारा जीवन था ना, वो 360 डिग्री घूम गया. हमको समझ में नहीं आया यार ये कैसे हो सकता है. तो पहले हमें 3 शब्दों को समझते हैं. फॉर्म, which is an outcome or a product or a result, follows, that means escort or succeed, and then function, which is a purpose, use or reason. This was a gentleman, Louis Silvan, which gave this term fall follows function for the first time. And this is supposed to be one of those buildings जहां पर ये form follows function जो है वो establish किया गया. You can see this is Wainwright building, the first skyscraper in its times. और आप इसके देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे you have a robust structure with a larger openings to house the maybe a showroom or a big space or a commercial space, and then sleeker windows to house the office spaces, and then finally a big cornice on the top to house the services. This is the first examples of form follows function. And at that time this concept was very new. This concept was related to the modern architecture of 20th century. So the definition of modern architecture changes with time, of course. The principle was the form of a building or an object should primarily base upon its function. ये mandatory clause था, and that's how this idea governs the whole idea of design process. These are few examples. I think हम सभी ने, जितने भी हम यहाँ हॉल पे बैठे हैं, हम सब ने ये structures देखे हैं. Chicago School of Architecture, Bauhaus School of Architecture, and even Prudential buildings. एक building हमने Wainwright पहले देखी थी. So these buildings are strong examples of form follows function. And I believe that when a function is repeated in all the floors, it actually may give the third dimension. तो ये सारे structures वो हैं जहां पर कि repetitive function हो रहा था सारे floors पे एक जैसा. And that's how we come up with the Twin Tower or this Church of Light in Japan or the Clock Tower in UK. The form of a building is inspired by some natural elements or some products. As you can see on the left, concept from a basket. On the right hand side, you can see it's been taken from a natural lotus flower. If we talk about in fashion, yes, of course, the left hand side has been inspired by an umbrella and the right hand side is inspired by a building in UAE. The bullet train of Japan has been inspired by Kingfisher or the building itself. So what I'm trying to say is कि may it be a building or structure, may it be in fashion or may it be in product, everywhere the same things goes. So we live in a euphoria, we are architects or we are designers, but actually it goes everywhere. Now take an example of a simple pen drive. The function is the same and we have enormous forms as an option. Now taking an example of a jeans, a rugged jeans, which you can see the picture on the left, the purpose of all these jeans are same, just to cover up the body and to make those points very very robust where the load or the pressure comes. The left hand side jeans, I believe that it is 30% form and it is achieving 70, sorry, I'm wrong. It's 70% of form and it is achieving 30% of function. Whereas the image in the between, let's say a 50-50. But on the right, again, the function is same, but the form is been given a dramatic style. Maybe the left hand side is what under thing, है the middle one is rightly done and the right one is overdone. If I talk an example of overdone, I can't find a better example than this. This is a fishery department in Hyderabad. और पता नहीं किसको भूत चढ़ा कि जब फिशरी आया तो उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही फिश आया होगा. And I believe that this is the most blunder example of any building. So to me, it's a right balance which is needed between both the form and the function. You can take an example of a chair, may it be recliner or may it be study table or maybe an office chair, but the purpose is the same. Or maybe it's a difference in material. One is wooden, another is iron, and third one is upholstered. But again, the function is same. Or maybe with the moods or with the ambience, you go. So we have so many examples of chair. So the function being same and the forms are quite different. Another example where the material is same, the product is same,
but the function is different. As you can see that these chairs are used for various types of relaxing positions. Or even in this case, where the product is different, the function is different, but the purpose is same. To me, I believe that the purpose is the patriotism. Okay, so I ask you, is it a form follows function or a shape follows function? To me, it's a shape follows function because हमने crucifier लिया and then we tried to fit in this cathedral into it. So I believe that 20th century से पहले जो हम बहुत पहले प्रैक्टिस करते थे वो शायद हम फंक्शन फॉलोस फॉर्म को प्रैक्टिस करते थे. Because if I take an example of a Khajuraho temple or maybe a Jagannath temple or maybe Meenakshi temple or Rameshwaram temple down south, everyone has the same function, but the form was different. फिर पता नहीं कहाँ 20th century के अंदर form follows function आया, Wainwright building आई, Louis Sylvan आया, and that's how we came with the word. This is a clan. This is a typical house in China where you can see the whole entire family lives in one building, protecting themselves from the enemies and maybe some creating some privacy from outside, but they are overlooking spaces within the building itself. तो ये community feeling की space feeling देता था. Or you can see these buildings. ये सारी की सारी buildings जो हैं, they are perfect example of function follows form. Or maybe this. So now my question to the audience is, this example, Guggenheim Museum, is it a form follows function or function follows form? Can I see the hands for form follows function? एक भी नहीं है. अच्छा एक. Or function follows form? I believe the entire audience. Okay. So to me it believes it's a form follows function because the basic function is to take a person on the top with the help of a lift and then gently coming down through the entire museum. Hai na? So it's a perfect example of form follows function. But wait, to me it feels like it's function follows form because it's been inspired by nautical shell. नहीं लगता कितना कंफ्यूजन है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब मैं मेरे दो महान पैनलिस्ट को यहां पे बुलाना चाहूंगा. Given an opportunity to speak on form follows function and let another speak on the function follows form. So I'll go with the nearest one. शीतल जी, आप क्या पिक करना चाहेंगे? Form follows function. तो आपके लिए सर, function follows form is the only option left, sir. ये slight change. सर स्लाइड वाला बटन मैंने वहां रख दिया. अरे हमारे भी है इसमें. यस. ओके प्लीज कंटिन्यू सर. आप जो बात कर रहे हैं ना, आप पता नहीं आज क्यों बात कर रहे हैं. मैं बात करता हूँ 5000 साल पुरानी बात. 5000 साल मतलब भगवत गीता जब कही गई, जब नरेट करी गई भगवान श्री कृष्ण द्वारा. आपने सोचा भी नहीं होगा कि तब उन्होंने बात करी कि इट इज द फॉर्म विच इज क्रिएटिंग द होल प्रॉब्लम. सो द फंक्शन ऑलवेज इज फॉलोइंग फॉर्म. मैं आपको श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ. ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते. सबसे पहले आपका ध्यान उस पर जाएगा और उसके बाद आप उस पर रिएक्ट करेंगे. दैट इज द फंक्शन. मैं आपको आप तो पुराने सिंगर गाने वाने सब जानते हैं, है ना? तो मैं आपको एक लाइन में बोलता हूँ, अगली आप बोलिएगा. आप तैयार नहीं हो उसके लिए, पर मुझे लगता है वो आता होगा आपको गाना. I'll try, sir. I'll try. आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए. आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए. सो नाउ मुस्कुराहट इज अ फॉर्म, ओके, विच व्हेन यू प्लेस इट ऑन योर फेस तभी आपका काम होगा. आए हैं तो काम भी बताइए, बोल रहे पहले आप मुस्कुराइए. सो आई हैव टू चेंज माय फॉर्म to start a discussion, okay, to start the function. So this is just a very बहुत एक डिफरेंट मोड में सोचा था कि ये एक बहुत अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को, लेकिन हम यहाँ से चालू करते हैं. आप बताइए, वी आर इन अ लैंड ऑफ अरावली स्टोन्स, है ना? अरावली माउंटेन्स, यहाँ पर स्टोन है. क्या आप हर माउंटेन की पूजा कर लेते हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ. नहीं. जैसे ही उसमें कोई रूप आएगा, कृष्ण जी आएंगे या छोटे से हमारे शिवलिंग आ जाएंगे और सडनली आपका भावनाओं का गुबार बाहर निकल जाता है और आपको लगता है दिस इज इट, भगवान मेरा ये काम कर देना, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, हैं, या मैं प्रार्थना करूंगा कि गौरव जी की जयपुर में जाके मैं बहुत काम करूं, अगर ऐसा ही हो गया तो मैं आपको 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा. जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ दैट फॉर्म
ओके, सो दैट फॉर्म इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन लाइफ. आप इमेजिन करिए, आप सबको मैं एक मौका देता हूँ सर. आपने बहुत देर बोला है इसलिए सर 40 मिनट का सेशन, आप चिंता ही मत करो. हाँ ठीक है. हाँ. मैं आप सबको एक मौका देता हूँ. एक बार के लिए अगर आप आंख बंद करें, आंख बंद करिए, ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा. कमलेश सर आप भी आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद करिए एंड इमेजिन समबडी विथ नो फेस. नो फेस तो है लेकिन उसकी आंखें नहीं है, उसकी नाक नहीं है, उसका मुंह नहीं है. कैन यू इमेजिन दैट फेस? ओके, नाउ गिव अ नेम टू इट. क्या वो सुनील है? क्या सुनील है? क्या गौरव सर सुनील है? क्या नहीं है सर. नहीं है, हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज इट हैज टू हैव अ फॉर्म जिससे आप दोस्ती करो, विच इज अ फंक्शन. ठीक है, ये तो हो गया बहुत बेसिक लेवल पे, अभी आर्किटेक्चर तक तो आया ही नहीं हूं मैं. सो आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट इट इज द फॉर्म विच गवर्न्स द फंक्शन. आर्किटेक्चर, वी ऑल आर आर्किटेक्ट, वी डिजाइन अ प्लेस, और डिजाइन का जो भी फॉर्म डेवलप होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. और मेरा कहना है जो भी बिल्डिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे रेजिडेंस हो, चाहे ऑफिस हो, ठीक है, चाहे एक बेडरूम हो, वॉशरूम हो, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. वी ऑल स्ट्रगल इन एड्रेसिंग दोज फंक्शन, एंड while addressing the functionality of that space, we achieve a form, we derive a form. This form follows function. सर मान लिया मैंने, लेकिन उसकी वजह से शायद आज हमें सब जगह बॉक्सी बिल्डिंग्स देखने को मिलता है, क्योंकि हम उस फंक्शन के ऊपर इतना जोर लगा देते हैं कि एज एन आर्किटेक्ट हमारे पास में इतना पावर है कि वी कैन चेंज पीपल्स लाइव्स. 100% मैं बोल रहा हूँ, यू कैन चेंज पीपल्स लाइव्स बाय वर्च्यू ऑफ डिजाइन. हम अगर उसका फंक्शन, यस, तो वो हम उसे बिल्डेबिलिटी को लेके एक हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आ जाता है कि अरे ये बन ही नहीं सकता, छोड़ो ना, क्यों करें, अपन तो सीधा टॉयलेट ही बनाते हैं. क्यों बनाते हैं सर? तड़ावांडे का स्ट्रक्चर देखा है ना आपने, है ना? कहाँ सर, कोई लेना देना नहीं है उसका. सुनील जी, आप वॉशरूम की बात कर रहे हो. हाँ, क्योंकि आपने छेड़ा हुआ. यस, वॉशरूम में हम क्या बात करते हैं? देयर इज अ ड्राई एरिया, देयर इज वेट एरिया, ठीक है ना. हमारे पास वॉशरूम का स्पेस कंफर्टेबल हो तो हम WC वॉश मशीन पहले प्लेस करते हैं, बेडिंग एरिया लास्ट में करते हैं. अब आप कोई फॉर्म को लेते हुए कोई डिजाइन एंगल से बेडिंग एरिया तो पहले नहीं डालेंगे ना. मतलब यू विल से कि पहले ड्राई एरिया है, वेट एरिया बाद में है, क्योंकि आपको बेडिंग एक बार यूज करना है, आपको वेट एरिया में बार बार नहीं जाना पड़े. मतलब मेरा कहना है functionality is the most important thing. We can't surpass form. Yes, we as a designer, we will address aesthetic issues, but not at the cost of function. If you are answering function perfectly, you are getting the absolute good form. when we find an excuse कि ये टॉयलेट में पहले ये आना चाहिए, पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए. Sir, nobody is denying that. When you come to me as an architect, as a client, if the client comes to me as an architect, I am supposed to address. So it is by default, मेरे ब्लड में है वो कि मुझे फंक्शनैलिटी तो हैंडल करनी ही है. I cannot have door in the छत, है ना? ये हो सकता है छत स्काईलाइट से भी ला सकता हूँ मैं, सॉरी गलत एग्जाम्पल है, बट यस, फंक्शनली आई हैव टू बी करेक्ट बिकॉज वो मेरा क्वालिफिकेशन है. दैट इज माई इनबिल्ट फीचर. Now I should be working on the form because by default अगर मैं आपको बोलूंगा इंडिया में गाड़ी चलाइए तो आप लेफ्ट साइड में चलाएंगे, राइट में चलाएंगे? नहीं, मैं एक मिनट में पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए ना सर. There are certain rules. We always need to follow rules. So right. So now that rule is already there in me after my education, that I am supposed to be designing a functionally correct building and that is inbuilt feature. So now why shouldn't I work on form? सुनील जी, पहला क्वेश्चन है, यस आई एक्सेप्ट, आप भी एग्री कर रहे हैं, फंक्शनलिटी इज अ मस्ट. नहीं मस्ट नहीं, अभी सर वो तो उसका पार्ट है सर, उसका पार्ट है सर, वो बाय डिफॉल्ट है, वो बाय डिफॉल्ट है सर. बाय डिफॉल्ट आपने एग्री किया ना बॉस, एग्री कर लो. अच्छा ओके, एग्री. फिर डिबेट कैसे होगी? मैं बोल रहा हूँ, अब आपने फॉर्म पकड़ ली, ठीक है ना. मैं तो बोल रहा हूँ फंक्शनलिटी तो ब्लड में ही है. अब आपने एक फॉर्म ले ली, व्हाटएवर फॉर्म, अब आप उसमें ट्रैप हो जाते हो. मतलब नहीं सर, बॉस, देयर कम्स अ डिजाइनर. नो सर, ठीक है, दैट्स गुड सर, दैट्स गुड. आई मीन इट थ्रोज यू अ चैलेंज, देन यू कैन डेफिनेटली फंक्शनलिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो. नहीं सर, कभी भी नहीं होगा सर. फंक्शनलिटी में अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब ये फिश वाली जो बिल्डिंग दिखाई अभी गौरव जी ने, आप उसको क्या बोलेंगे? उसने एक फॉर्म पकड़ ली. अब जैसा सर एक बात बोलता हूँ मैं,
है ना, हाँ. we are professional artists, okay, we are not, and we are commercial artists, sorry, we are working for people. Somebody would have loved it, sir. Maybe you and me, we don't love it, Yeah, but there would be people who would have loved it, And even- and they would have erected it. lot of kids must have liked the building. Yes, Wow. yes. So वो सवाल कहाँ से आता है नहीं, sir? बट एक जनरल अगर उस पे अपन बात करें तो आई मीन इफ वी टॉक अबाउट Sir. परसेंटेज, ट्रैप तो हुआ ना, उन्होंने एक फॉर्म ले लिया कि मुझे फिश म्यूजियम फिश की शेप का बनाना है. सर हमने मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, वी डिजाइन वन एकेडमिक बिल्डिंग एंड समहाउ इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज ऑफ सम म्युनिसिपल इश्यूज एंड ऑल, एंड देन मेरा स्ट्रक्चर का हाइट 85 मीटर से 45 मीटर्स पे आ गया सर. 45 मीटर, 85 से 40, मतलब पूरा धड़ गला सब उड़ा दिया. नाउ द चैलेंज इज टू अगेन क्रिएट something which is pleasing to me also, right? Sir, we designed a hyperbolic paraboloid and we convinced the government of Rajasthan and we could erect the building, and today it is on the top floor, all done, khali shell banna baki hai. Yes, it was a big challenge, especially on the services, and we could meet out those challenges without wasting a single square feet of area. And this could happen because I took it as a challenge कि मेरा फॉर्म शुड बी आइकॉनिक. मुझे बहुत मेहनत लगा सर. आई हैड 3 टायरलेस डेज एंड नाइट्स टू कार्व आउट दैट स्पेस. तो मैं समझता हूँ जो फिश वाला था ना आर्किटेक्ट, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया होगा, वो कैसे उसको मैनेज किया होगा अलग अलग उसके. तो यू सी, इफ यू ट्राई टू सी द ब्यूटी बिहाइंड दैट, आई थिंक यू विल अप्रिशिएट दैट. एज एन आर्किटेक्ट, आपकी मेरी सबकी जीवन में चैलेंजेज हैं. 85 मीटर बिल्डिंग को 45 मीटर की बिल्डिंग आने में आपने सेम रिक्वायरमेंट एरिया चैलेंज करके किया, बट एट द सेम टाइम आपने फंक्शनल जो उसका वो हो ही नहीं criteria है, सकता सर. हाँ, नहीं. उसमें कोई आपने फॉर्म डेफिनेटली जो 85 मीटर की फॉर्म है वो तो आप नहीं ले पाए होंगे ना. मेन ये डिस्कशन का पॉइंट है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन और द वे यू आर हैंडलिंग इट. यस. टू मी, आप फॉर्म बना लीजिए, फंक्शन फॉलो करेगा सर. आपने किसी को सीधी रोड पर टेढ़ी गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा होगा सर, या ऐसे गोल गोल रोड पर सीधी गाड़ी चलाते हुए देखा है क्या? तो इट इज द फॉर्म विच इज गवर्निंग द फंक्शन. चलिए अब मैं दूसरी बात है, वी डिजाइन स्पेसेस विद इंटीरियर डिजाइन ऑल्सो. हम एक ड्राइंग रूम एरिया, लॉन्ज एरिया में सोफा तो एक डिजाइन करते ही करते हैं. 2 तरह के सोफा हर आदमी के क्वेश्चन. एक तो एल होता है जिसमें कॉर्नर मूवमेंट होता है, एंड दे आर 2 सेपरेट सिटिंग, है ना. अब फंक्शनलिटी के हिसाब से आप क्या, भाई आपको फॉर्म वाइज वो एक कंटिन्यू पसंद है, मान ले, सपोज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है, ठीक है. फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग वो मेरे हिसाब से, मैं तो उसको सही नहीं मानता, ठीक है. आपके हिसाब से अगर आप फॉर्म ड्राइव करते हैं, यू विल फॉलो दैट. पूछ रहा हूँ आपसे ना. हाँ. तो आप लूजिंग अ फंक्शनलिटी ऑफ दैट कॉर्नर, क्योंकि मैं उसको कॉर्नर को 100 तरह से एड्रेस कर सकता हूँ. अगर आप सोफा में चला गया, उसमें एडेड कॉस्ट हो गया. आपको एक कंटिन्यूटी मिल रही है क्योंकि आपको एक कंटिन्यू चाहिए. मैं आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर देता हूँ. मैं जब फंक्शनलिटी की बात करता हूँ, मैं वो कॉर्नर एरिया लूज करके एक साइड टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, कोई प्लांट रख सकता हूँ, कुछ कप रख सकता हूँ टी का, और दे आर लॉट ऑफ एरियाज. और आपने इन दिनों एक चेंजेस देखा है विद द फंक्शनलिटी. आई हैव ऑब्जर्व दैट. पहले वो एकदम 90 डिग्री एल इनसाइड से कॉर्नर होता था. नाउअडेज व्हाट इज हैपनिंग, इनसाइड में वो थोड़ा इंक्लाइंड हो रहा है, सो दैट अ पर्सन आल्सो कैन सिट देयर. तो दिस इज अचीव्ड थ्रू फंक्शनलिटी, क्योंकि वहां पे वो सीटिंग का रिक्वायरमेंट है, वो एड्रेस हो रहा है. तो आप फंक्शनलिटी तो है जो बोल रहे हैं, लेकिन केवल फॉर्म को पकड़ के कोई भी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे दुनिया भर के एग्जांपल हो सकते हैं. मतलब यू कांट स्टिक टू फॉर्म, मेरा तो ऐसा सोचना है, एंड आई फॉलो दैट आल्सो ऑलवेज. शीतल जी के सोफे वाले एग्जाम्पल से मुझे एक बात याद आई कि जो 3 सीटर सोफा होता है ना सर, उसमें भी एक्चुअली कंफर्टेबली तो 2 ही लोग बैठ पाते हैं. बीच वाला बंदा तो ऐसे बैठा होता है ये देखो. हाँ, जैसे वेणु जी बैठे हैं, है ना, बीच वाला बंदा ऐसे बैठा होता है बिल्कुल सूट सावल में. सर इस पे सोफे पे बात निकली है तो सर आप देखेंगे कि डिफरेंट पीपल वुड सिट इन अ डिफरेंट वे व्हेन द फॉर्म चेंजेस. आप देखिए यतिन सर, मैडम ऐसे बैठे हैं एकदम मस्ती से, पीछे वाले देखिए वो कैमरामैन बेचारे यूं बैठे हैं, ठीक है. सो हु इज गाइडिंग इट नाउ? इट इज द फॉर्म ऑफ द चेयर विच इज गाइडिंग दैट फंक्शन ऑफ सिटिंग लेजरली और सिटिंग अटेंटिवली. अग्रीड सर. सर ये पहली लाइन देखिए, सब ऐसे ही बैठे हैं, A to Z देखिए, A to Z. सर वो पीछे वाले देखिए सब ऐसे ही बैठे हैं. वैसे सर सुनील सर, मैं आपके साथ ही जाना चाहूंगा. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है एज अ जनरल पर्सन
मैं तो किसी एक बिल्डिंग को अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे एक्चुअली नहीं पता उसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट मैं एक्चुअली फॉर्म को अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ। तो मैं तो आपके साथ ही जाना चाहूंगा। मैं गौरव जी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं रूटीन में मेरे क्लाइंट से बात करता हूँ। जब हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, एलिवेशन की बात होती है, आई ऑलवेज से टू माई क्लाइंट, मैंने कहा सर जब तक बिल्डिंग बन रही है ना तब तक आप एलिवेशन की बात करोगे, ठीक है ना। बिल्डिंग बनने के बाद यू विल नेवर से मेरा एलिवेशन है, बट यू विल ऑलवेज यूज इंटीरियर स्पेसेस वॉच इज डिजाइन। आप जैसे हिरन सर ने दिखाया जो आउटडोर एरिया, जो आपको ग्लास एरिया, जो उनको अप्रिशिएट करोगे, उनको यूज करोगे, ठीक है। एलिवेशन तो लोग बाहर से, अरे यार लड्डा जी की बिल्डिंग है, अरे ठीक है। सर यहाँ पे मिस्टेक है ना हमारा, इट इज अ मिस्टेक ऑन आवर साइड सर। फॉर्म डजंट मीन ओनली एलिवेशन सर, फॉर्म डजंट मीन नहीं सर, मेरा तो मतलब वही था सर। हाँ नहीं, मेरा speaking. पर बट फॉर्म का मतलब वो नहीं तो होता सर आप क्या कर रहे हो, आप दोनों चीजों को अब नहीं, interweave दोनों कर रहे यू हो सर। कैन नॉट सर। आप स्किन को बॉडी से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, बस तो इट इज Architecture वन की बात नहीं। सर, आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। अरे स्किन एलिवेशन, स्किन मतलब ठीक है, थोड़ी इंग्लिश मेरी कमजोर है, तो मैं एलिवेशन और उसका जो प्लान है उसको मैं एक मानता हूँ, मैं अलग नहीं मानता सर। सो व्हेन द फॉर्म आई विल से इट इज like this in the room, then it is reflected outside also. ये मैं कहना तो चाहता हूँ। लड्डा सर, जो ये पर्पस था ना आप दोनों के बीच जो वार्तालाप कराने का था, वो बिल्कुल जो शीतल जी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बात थी जो हमको अभी आपने कहा वो फिशरी सर बिल्डिंग। वो फॉर्म नहीं है सर। अरे सर तो सर नहीं सर, अरे सर द फॉर्म इज इनसाइड आल्सो, डोंट यू सी दिस एज अ फॉर्म? सर 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 अभी आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो समझने के लिए। अरे सर वो सब समझदार लोग हैं सर। सर अल्टीमेटली तो फिर अपन बात उसी पे आएंगे कि ये सब कुछ अमलगमेशन है, बट द पॉइंट अभी जो यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ थी वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ थी। हम फॉर्म से मतलब हमारा वही है, जो कुछ लोग जब जयपुर के जेएलएन मार्ग पे चलते हैं, पीपल अप्रिशिएट वर्ल्ड ट्रेड पार्क, बट एज एन आर्किटेक्ट वी डोंट अप्रिशिएट इट। वी अप्रिशिएट दैट बिल्डिंग फ्रॉम 200 फीट अवे। उधर लाल बहादुर नगर में पहुंचा तब हम उस बिल्डिंग को अप्रिशिएट करते हैं, यू नो। सो एज अ लेम, एज अ जनरल मैन, वहां पे अपन सर उस पॉइंट, सर सेकंड ईयर आर्किटेक्चर के बच्चे बैठे हुए हैं सर, अब तो चले गए घर। नहीं कुछ बैठे हैं। सो अपन सर बिल्कुल अपन बहुत स्ट्राइकिंग लाइन में बात कर रहे थे। ये डिस्कशन मैं जो समझ पाया कि जो आर्किटेक्चरल हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में वो कर रहे हैं, हम भी वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो एक जो ट्रैप होता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन और फंक्शन, उसको समझने के लिए वी आर डिस्कसिंग इफ व्हाटएवर इज टेक अवे फॉर मी आल्सो। यस यस। तो मेरा ऐसा समझना है कि मेरे को 100% फंक्शनलिटी एड्रेस करनी है, आई विल अचीव फॉर्म ऑटोमेटिक। द अप्रोच टुवर्ड्स फंक्शनैलिटी शुड बी फॉर्म ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स सर, है ना? क्योंकि आप तभी वो मासिंग करते हैं, तभी आप वो वॉल को कर्वेचर देते हैं, कभी आप सेक्शन में टेढ़ा करते हैं, राइट? हाँ। सो तो सर तो आपके बैक ऑफ द माइंड में इट इज द फॉर्म। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ आपको। जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे इन आवर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जब हमको हमारे टीचर ने बोला था फॉर्म फॉलोज फंक्शन, अपन एकदम बढ़िया फंक्शनल प्लान बनाते थे, और क्या होता था अपने ज्यूरी से एक दिन पहले वो साइड लाइंस एक्सक्लूड होती थी इन द थर्ड डायमेंशन, खिड़कियां बनती थी, छोटे छोटे छज्जे लग जाते थे। दैट वाज हाउ वी कम टू द थर्ड डायमेंशन, बट डेफिनेटली इट शुड गो हैंड इन हैंड। तो मैं सर अब अपनी वार्तालाप को बीच में रोकते मैं चाहूंगा ऑडियंस अगर कुछ पूछना चाहे। सर मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब भगवान ने हमको बनाया तो उनके दिमाग में क्या था, फॉर्म सोच के हमको बनाया कि फंक्शन? बहुत बढ़िया सवाल है, आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू दैट। सुनील जी आंसर देंगे क्योंकि हाँ। गीता की बात उन्होंने की। यस 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 यस, मैं 5000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, है ना? शांतनु, हंसने की बात नहीं है, सच बता रहा हूँ। इट इज इन बायोलॉजी, द फॉर्म इज ऑलवेज फॉलोड बाय फंक्शन। यू रीड इट एनीवेयर, बायोलॉजिकल फॉर्म्स, पहले फॉर्म बनाया गया, उसके बाद उसका फंक्शन डिसाइड हुआ। रीड इट एनीवेयर, ओके? सो इट इज द फॉर्म विच वॉज डिसाइडेड बाय गॉड फर्स्ट, एंड देन फंक्शन अलॉटेड टू दैट फॉर्म, कि मुझे दांत कैसा रखना है, मुझे ये क्यों रखना है, ये किसको खाएगा, ये किसको खाएगा, दैट वाज प्लान्ड। यू रीड इट इन बायोलॉजी, इट इज डॉक्यूमेंटेड, एंड भगवत गीता का तो मैंने बता ही दिया। और डार्विन थ्योरी क्या बोलती है सुनील जी? वो तो इवोल्यूशन बोलती है सर। 5000 साल पहले तो शांतनु भगवान ने जो बनाया बनाया, अब बीबी क्या बना रही है वो भी सोच लो। So it was an amazing discussion, सुनील भाई and शीतल भाई। अगर मेटामॉर्फोसिस ले है जो पतंग तितली का, तो बिकॉज द फंक्शन ऑफ इट इज टू फ्लाई, द फॉर्म कम्स लाइक दिस। ओके, सो दैट्स आल्सो दैट इट इज नॉट कि पहले से फंक्शन हो तो वो करेगा। बट आपका एग्जांपल अगर मैं दूं, द प्रॉब्लम इज नॉट, यहाँ बात हो रही है आकार से सीमितता आती है
अनुभूति की तरफ हमें जाना है। अगर B.R. चोपड़ा का महाभारत देखा तो नीतीश भारद्वाज हमारे दिमाग में घुस गए कि कृष्ण मतलब ये, जबकि अनुभूति ये है कि हर मदर को लल्ला दिखता है, अपने बेटे में कृष्ण लल्ला के स्वरूप में दिखता है। उसका इम्पैक्ट उस लेवल तक है। सही है। हर फियांसे को अपना फियांसे कृष्ण में दिखता है, हर टीचर को, हमें हर शिष्य को वो महाभारत वाले कृष्ण दिखते हैं, और विराट स्वरूप में ये तो बहुत बड़े हैं। ये कृष्ण का मजा है, सीमित आकार से नहीं। इसीलिए मंदिर में टिपिकल गर्भगृह इज वेरी डार्क, कि आप जिसको मनोचक्षु से ईश्वर देखना चाहते वो आपके लिए है। दैट्स प्लूरलिज्म, बट इट इज द आर्किटेक्चर दैट गिव्स द सीक्वेंस टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्डली एंड कम टू पर्सनली डायलॉग। उसमें वो फिक्स नहीं है। यू नो, can anybody commonly agree on what is Muhammad Paigambar's image like? No, it's not allowed. So each one can conjure their image कि मेरे लिए ये, so this one get connect. So fishery में वही फिश जो हम बच्चों की तरह दौड़ते थे वो हो गया, पर जेली फिश नहीं आई। 500 साल की फिश, 500 तरह की फिश होगी, वो आपने सीमित कर दिया। That's the limitation of आकार, जबकि अनुभूति 500 साल भी आप वही ले सकते। Yes, correct, sir. वाह, वंडरफुल। तो मतलब Sir, I would also like to say something. Yeah, please. I think Zaha Hadid is the best example where if you feel like the form has to come first, then it comes first. And I think the limitations comes with lot of restrictions when we are in the profession. But as a creator, But Shikha, what sir said, And let us शिखा तेरे बोलते कंट्रोवर्सी आ गई वापस से। इतना बढ़िया सब शांत हो चुके हैं। नहीं आएगी। she is also addressing the same issues we are addressing. Yeah. She is वो फंक्शनलिटी के डोमेन में ही उसका एड्रेस करने का तरीका अलग है. It doesn't mean कि she is not following form follows function. But what is important here for everyone that Yatin sir said, it is the anubhuti which is important. It is the experience which is important. And I think मैं अगर फॉर्म से लाता हूँ तो शीतल सर फंक्शन से लाते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज द अनुभूति। ट्रू, बट आई बिलीव कि अभी का जो पैनल डिस्कशन हुआ था और जिसमें कि अभी करीब 4.5 मिनट पहले दोनों भाई लोग चेयर चेंज करने को तैयार थे, यानी कि बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म कि ये सब कुछ जो डेवलपमेंट है, इट्स नॉट जस्ट मेकिंग अ फंक्शन। नहीं सर, मैं नहीं सुनी, मैं उधर आता तो मैं मेरी पैर भी करता उल्टे डायरेक्शन से। बट इसका मतलब ये है ना कि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, they go connected. I mean the slide I'm showing you right now, we created stadiums. The stadiums were created for the purpose of they were created for playing sports, or to have an uninterrupted view. We raised the sitting, and that's how the form got developed. But on contrary, the Montera Stadium, जहाँ ये प्रधानमंत्री मोदी जी दिख रहे हैं ट्रम्प के साथ, so this stadium was meant for sports, but this stadium is also been used for some different purpose. सर आई विल कम टू दिस, इस पे मैं बोलना चाहता हूँ। सर ने पॉइंट रेज किया था, हमने एक बावड़ी रिज्यूनेशन किया। इट इज ऑफ नो रेलेवेंस टुडे बिकॉज नल से मेरे घर पे पानी आता है। द फॉर्म इज सो ग्रेट एंड सो नाइस दैट इट can have multiple different functions, है ना? So the form invites what? Being an amphitheater, wherein there's superb acoustics, wherein you can have music programs, you can have lectures, so that Bawadi became a amphitheater और हमने उसको use करके बताया. So the form is the same, but the function can keep on changing, है ना? Exactly. हाँ. एक जो मिट्टी का मटका है उसके अंदर आप छाछ भी रख सकते हो, पानी भी रख सकते हो, but it is changing with times, changing with context. Exactly. Yes. So the point is कि the example will be the perfect one जब ये दोनों साथ में चल रहे होंगे, they'll go hand in hand.